global hunger index and how it is linked with the exam. It is in the news from the last 5-6 days. So I will discuss all these things in this class. So let's start with the index first. Global hunger index, it is released by Wealth Hunger Life and the consult worldwide. So whenever you're reading an index, what you need to know, please write down. First, released by, what is the parameter or the indicator? Parameter or indicator in the index. India ranked 4th, last 3-year report trends. These are the 4 major criteria whenever you are reading any index. Either it is global hunger index, multidimensional poverty index, or any other index. So you need to know these 4 major criteria. So abhi, after COVID, if we see, most of the economy are degrowing, but the India is growing very well. After the 2002, if we see, the growth rate of India is very good. Even in the manufacturing sector, service sector, or overall GDP growth of India is very good. But why we are lacking in this index only? We are lowest in the index from our neighbors. Our neighbors are having ranks better than us. Even it is the Pakistan, it is the Bangladesh or the China, they are having the better rank. So what the reason behind it? What the solid reason behind it? Nourishment है, undernourishment क्यों है, stunted child growth क्यों है, malnourishment क्यों है? So what is the major reason? Even after the successful operation of the schemes like PDS, public distribution system होने के बावजूद, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना also, that was extended recently for 3 months old. So why after this successful mission we are ranking 107 in this index? So we will see. So first of all, I will tell you how it topic is important for the prelims perspective and the mains perspective, and from the which part of syllabus it is linked. First of all, we see the prelims perspective. For the prelims perspective, what you will read in this topic. Number 1, what is the exactly the global hunger index है क्या? The terms child wasting and the stunting. Child wasting and the stunting. And what is the position of India in child stunting and the wasting? Mortality rate, undernourishment, and the India initiative to eradicate hunger, like Poshan, Pradhan Mantri Anna Yojana, PDS system, in the Dhanush for the immunization of the children. These are the major steps taken by the India to reduce hungers. And the recent report released by NFHS, National Family Health Survey, National Family Health Survey report and the Global Hunger Index reports are the contradict each other, because the NFHS reports showing that we are improving in each indicator, whereas the Global Hunger Index is showing we are not improving in any indicator. Even we slip from 101 to 107 rank. So these are the contradict in nature. So the Global Hunger Index is released by Wealth Hunger Life and the Concern Worldwide, and these are the important topic for the prelims perspective. Now comes to the mains perspective, how Global Hunger Index is linked with your main syllabus. First, India performance in hunger index. Like if I discuss in 2020, we are on 19.7 rank, 97. In 2021, we are on 101 rank. And now in 2022, we are on 107 rank. So continuously we are on a decreasing trends. Second, status of hunger and malnutrition in India. From the prelims perspective, आपको पता होना चाहिए what is the malnutrition, but for the mains perspective, you need to have data. कितना % decrease हुआ है? What is the report of NFHS 5 survey? So you need to know all these things. Third, relation of hunger and poverty. How hunger and poverty both are interlinked. तो वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द हंगर एंड पॉवर्टी इंटरलिंक. उसके लिए आपको इस रिपोर्ट को कोट करना होगा, एनएफएचएस 5 के डाटा को कोट करना होगा. दोनों में इंटरलिंकेज दिखानी पड़ेगी कि हाउ ए पुअर मैन नॉट एबल टू बाय अ न्यूट्रिशन रिच फूड. कैसे उसको न्यूट्रिशन रिच फूड नहीं मिलता है, हेल्थ इंडिकेटर उसके अच्छे नहीं होंगे, रहने के लिए उसके पास मकान नहीं होगा. बोल आर इंटरलिंक. तो जो भी चीजें होंगी वो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड रिलेशन ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी. नेक्स्ट,
The India initiatives. What are the initiatives taken by India to control the hunger? Example, I recently told you the Poshan Abhiyan for the children, PDS, public distribution system for BPL and APL family. APL is above poverty line, BPL is below poverty line families. And then Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, PMMVY, for Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana for the mothers who are bearing child, pregnant mother and lactating mothers. Then Poshan Abhiyan, PDS, Pradhan Mantri Matru Vandana, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Midday meal scheme is now covered under the Poshan Abhiyan. The name recently, the name is changed and the midday meal is come under the Poshan Abhiyan. Poshan Abhiyan is like a umbrella scheme. Now the small schemes are merged under the Poshan Abhiyan. So now the Poshan Abhiyan become a umbrella scheme. It's having like the, in 2019 they launched the Poshan, then Poshan 2.0. Some other schemes are also included in this, like the midday meal. So now the Poshan Abhiyan is become the umbrella scheme. And for the health indicator को improve करने के लिए the mission in the Dhanush. Mission in the Dhanush. This is for the immunization. Immunization of children. तो उससे क्या होगा? Child mortality rate. The child mortality rate will decrease. These are the steps taken by the government to reduce or eradicate hunger. So understood how this topic is linked with your syllabus and what perspective you will see when you're reading this topic. This is a part of your GS3, General Study 3 paper, Economy. Now let's see the question asked in the previous year examination. This is the question asked in 2016 UPSC prelims. Which of the following is or are the indicators used by IFPRI to compute the global hunger index? Undernourishment, child stunting, and child mortality. So answer will be C. All these are used. And one more. Anybody can tell? Child wasting plus child wasting. These are the four major indicators of global hunger index. So this is the prelims question. So directly they can ask. Now come to the mains part. This was the question asked in the UPSC 2018. How far do you agree with the view that focus on lack of availability of food as the main cause of hunger take the attention from ineffective human development policies? तो यहाँ पे हंगर को ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी से लिंक करके यू नीड टू आंसर. तो जब तक आपको दोनों के बारे में नहीं पता होगा, you cannot answer. And how this hunger is linked with human development. So this topic has become very important and the main focus of UPSC is asking because the reports are releasing every time. Reports release, India ranked below. Now we are very low in the Asian countries as well. Even the Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka are above us. Okay, so this is the main questions. Now we'll come to the concept. Exactly what is the global hunger index? What are the parameters of the index? And how they calculate? What is the range? This range is range between 1 to 100 and where we are, which is the dangerous range 1 to 39.5. 29 point something we got. So we will discuss all these things. So this is the report newspaper headlines. India ranked 107th out of 121 country on the global hunger index. Indication is 29.1. If any country is between 20 to 34.9, 20 to 34.9, the country will be considered as a under serious hunger country. So we are between 29.1 and above 50 is known as extremely alarming countries. And 35.9, 35 to 49.9 are the alarming countries. So we are in between the moderate and the alarming country. Means we are under the serious country. These are the rank of our neighbors. Sri Lanka 64. We are on 107. Sri Lanka on 64. Nepal on 81. Bangladesh on 84. Even the Pakistan on 99. We are only ahead of Afghanistan. Only 2 ranks only. So this is the situation according to the report, not according to the government,
but according to the global hunger index. So this is the rank. तो ये आपको last 3 years का पता होना चाहिए. In 2020 it was 97 and in 2021 it was 101 and in 2022 it is 107. So we can see the African country on the lower side, Rwanda, Nigeria, Ethiopia, Afghanistan, Zambia, India. We are comparing India with the least developing country where there is no food to eat, but we are having the enough food for the complete population and even we are exporting to the world. Then why this report? Means क्या हो सकते हैं? Implementation अच्छा नहीं हो सकता है. जिनके लिए है we are not providing. Segregation अच्छा नहीं है APL BPL का. Reports में sample size भी कुछ कम हो सकता है. The report is using the 3000 sample size out of a 1.4 billion population. 140 crore की population में they are considering the 3000 sample size. This is the minimalistic sample size. So the report is majorly based on these 4 indicators. One is the undernourishment. Second is the child stunting. Third, child wasting. And fourth is the child mortality. अभी हमें इन 4 का meanings पता होना चाहिए. What is all about? Because देखने में सुनने में similar लगेंगी, लेकिन सब में difference क्या है? Because the report is completely based on these 4 indicators only. Out of these, 3 are based on children only. They consider India is having only children, no adults. So only 3 indicators based on children only, and 1 is on everyone. लेकिन यहाँ पे they took the sample size of 3000 only. So समझ आ रहा है क्या क्या discrepancy है reports में? So why the report is showing the 107 rank? So first is the undernourishment. Undernourishment means the children or adults are not taking enough calorie of foods. ये किसकी वजह से हो सकता है? Either because of poverty, they are not having enough money. Second, government schemes are not reaching to them. वहां पर government scheme नहीं पहुंच रही हैं. Like even the middle class family are taking food from the PDS. Though the earning 6-7 lakh per month, they are taking food from the PDS. तो टारगेट नहीं है अच्छे, तो टारगेट डिलीवरी हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्ले अ गुड रोल इन दिस. नाउ the 70 to 80% are going to the target, but लेकिन अभी भी discrepancies बाकी हैं जिसके ऊपर टारगेट करना होगा. So this is about the undernourishment, means the calorie intake is very less, which lead to the undernourishment of children or adults. Now the child stunting. Stunting का means if I am a 5-year age, 6-year age and my height is 2-year age child, means मैं एज में तो बड़ा हो रहा हूं लेकिन मेरी हाइट according to my age is not increasing. So this is known as the child stunting. ये भी किस वजह से होता है? The reason will be the same. न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से है. हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि खाने को अच्छा नहीं मिला है, एनीमिक हो गया है. उसके बाद जो लाइक जो विटामिन मिलने चाहिए, जो मिल्क मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है. तो अकॉर्डिंग टू दैट चाइल्ड स्टंटिंग इंक्रीज हो रहा है इंडिया में. एंड द चाइल्ड वेस्टिंग, अकॉर्डिंग टू द हाइट, weight is not increasing. Means if I am a 10-year-old or 5-year-old, my weight is 6 kg, 7 kg, 8 kg, but according to normal it's near about the 15 kg. So this is a child wasting. Wasting मतलब child को waste नहीं हुआ, ये it's like a child में grow नहीं कर रहा है and weight उसका बहुत कम है. And the last is the child mortality. Mortality means death rate. वो बच्चे जो 5 साल तक अपना बर्थडे भी नहीं बना पाते हैं, बिलो 5 years एज में ही उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज कंसीडर्ड एज द चाइल्ड मोर्टेलिटी. So these are the 4 major indicators of this report: the undernourishment, child stunting, child wasting, and child mortality. On the basis of this, 2016 PYQ was framed कि ये 4 है इसका. Now come to next. तो ये जो 4 इंडिकेटर का कंपोजिशन रिपोर्ट्स में अलग अलग है. किसी को कितना परसेंट दिया गया है, किसी को कुछ परसेंट दिया गया है. तो लेट्स सी दैट. अंडरनरिशमेंट कंसिस्ट 1/3, means 33% of the report undernourishment and the 33% is the child mortality. 33% is the child mortality, 33% is undernourishment, and child stunting and child wasting is also contributing 33%. Both 33%, not individually. These individual 33%,
and this individual 33%. So total is the 100%. Like the HDI में भी आपने देखा होगा 3 इंडिकेटर्स हैं, तीनों का 1/3 है, अलग अलग तरीके से उनको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द यूज इन द रिपोर्ट. So this is the composition of the report mainly on which it based. अभी देख लेते हैं, इसमें समझ आ जाएगा which is the wasting, which is stunting. This is the normal one. जब हमारे जैसे हैं ये नॉर्मल वन है, बट दिस इज द वेस्टेड चाइल्ड. न्यूट्रिशन नहीं मिला है, इसका वेट बहुत कम है, एंड दिस इज द स्टंटेड वन. इसकी हाइट नॉर्मल के अकॉर्डिंग नहीं है. तो दिस इज स्टंटेड, दिस इज द वेस्टेड, दिस इज द नॉर्मल वन. अंडर नरिशमेंट तो दोनों ही है, इंक्लूडिंग द कैटेगरी ऑफ अंडर नरिशमेंट में तो दोनों ही है. नाउ व्हाई द इंडियन गवर्नमेंट क्वेश्चन द मेथोडोलॉजी ऑफ GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की मेथोडोलॉजी पे इंडियन गवर्नमेंट क्यों क्वेश्चन कर दिए? दे आर सेइंग वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द रिपोर्ट. लेकिन अब कभी कभार ऐसा होता है, अगर इफ दिस इंडेक्स इज सेइंग इंडिया इज ऑन 70, दे विल एक्सेप्ट. Like the World Bank ease of doing business report, they accepted immediately because we are improving on that. कोई भी रिपोर्ट होती है जिसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो रिजेक्ट कर देते हैं. जिसमें हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक हमारी तारीफ कर रहा है, IMF हमारी तारीफ कर रहा है, तो दिस काइंड ऑफ. लेकिन इस रिपोर्ट में मेजरली डिस्क्रिपेंसी किस वजह से दिखी है? उसके 2 रीजंस हैं. पहला रीजंस है जो 3 वेरिएंट्स है आउट ऑफ 4 बेस्ड ऑन द चाइल्ड ओनली. चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, these are based on the child only. तो कंप्लीट पॉपुलेशन को वो कवर नहीं कर रहे हैं. दूसरा, द सैंपल साइज इज वेरी लेस फॉर द अंडर नरिशमेंट. अगर मैं कहीं दिल्ली के एक कॉर्नर में जाके 3000 लोगों का सर्वे कर लूं और मैं बोलूं कि इंडिया में बहुत गरीबी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट दिस इज शोइंग कि यू आर गोइंग टू 3000 पीपल एंड सर्वे टाइप है. इट्स नॉट लाइक आप कंटिन्यूसली उनको इवेल्युएट कर रहे हो. एक सर्वे है, एक टाइम पीरियड के बीच में लिया जाता है. They are asking to 3,000 people on the basis of these indicators, and they are showing that India is not performing well. So ये रीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है. Why the government is not accepting and rejecting this report? On a similar basis, NFHS 5 released the report. The indicator was also the same, child mortality, but the NFHS 5 is showing we are improving continuously in each indicator. कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है. ये नहीं कि हम वी आर ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, बट वी आर ऑन इन इंक्रीजिंग ट्रेंड्स पे हम लोग हैं. इधर इट्स द चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और द अंडर नरिशमेंट, कुछ भी हो तो हम उसमें ऊपर है. और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी कम हो रही है. MMR, IMMR all are reducing. Infant mortality rate, maternal mortality rate, child mortality rate all are decreasing in India, but the report is showing the reverse trend. So this is the reason why the government is not accepting this report. After the BJP government in 2014, ये सब change हुआ है because the report initially 2019 we are ranked between 19 and 19 से below ही हम लोग रहते थे, and they are commenting on the government कि आप अच्छा perform नहीं कर रहे हो. But after the 2019 the ranking we are crossing the hundreds, उस पे cross कर रहे हैं. Even after spending too much on subsidies, ये रिपोर्ट्स ऐसा क्यों आ रहा है? दिस आर द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट. व्हाई स्पेंडिंग आफ्टर टू मच सब्सिडीज? इतना वर्ष तो नहीं आना चाहिए. मे बी 50-60 आप हो सकते हो, बिलो 50 आप हो सकते हो. इवन द स्पेंडिंग इतना. व्हाई द श्रीलंका एंड द नेपाल हैविंग द बेटर रैंक? द सैंपल तो वहां पे भी सेम लिया गया होगा. क्राइसिस है, अफगानिस्तान में क्राइसिस है. अफगानिस्तान में क्राइसिस के बाद वो 109 पे आ रहे हैं. यहाँ तो सब सिचुएशन ठीक है, इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक है लोगों के पास. 2005 से वी आर द मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. तो इतना अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन होने के बावजूद, अच्छा प्रोडक्शन होने के बावजूद, व्हाई वी आर ऑन द 107 रैंक? तो दिस इज द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट. एक तो हमने देख लिया कि वी आर क्वेश्चनिंग द मेथोडोलॉजी ऑफ द रिपोर्ट, बट देयर इज अ क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट आल्सो, व्हाई वी आर परफॉर्मिंग दैट बैड. तो ये चीजें हैं. दीज आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू टैकल हंगर. फर्स्ट इज द पोषण अभियान. पोषण अभियान is mainly for children. Midday meal scheme. Midday meal scheme में we are providing the food. Now the some state government is including egg also for the protein deficiencies. We are also including the millets for the higher protein efficiencies and the reduction of the anemia. Anemic patient को reduce करने के लिए, protein provide करने के लिए we are including the millets as well as the eggs in it. तो कुछ state government ने start कर दिया है, बाकी on the track पे हैं. Second, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. This is for the pregnant lady. Government is providing 6,000 rupees this process के लिए, and also providing fortified milk
फोर्टिफाइड मिल्क यानी इसका मीनिंग होता है कि इसमें न्यूट्रिशंस, विटामिन सारे पहले से ही मिक्स करके दे दिए जा रहे हैं ताकि वो डेफिशिएंसी ना हो बच्चों के अंदर और मदर्स को भी कोई इशू ना हो, एनीमिक प्रॉब्लम्स ना हो, तो दे आर इंक्लूडिंग इन द फोर्टिफाइड मिल्क में। तो दिस इज द सेकंड वन, फूड फोर्टिफिकेशन, द सेम थिंग। फूड फोर्टिफिकेशन में भी हम उसको एनरिच बना देते हैं। लाइक व्हेन यू आर बाइंग मदर डेयरी मिल्क तो सब खरीद रहे होंगे, उसके ऊपर कॉर्नर पे देखोगे फोर्टिफाइड मिल्क लिखा रहता है। वी आर इंक्लूडिंग विद द विटामिन। ये स्कीम्स में नहीं लिखा है कि वी आर इंक्लूडिंग इट, बट सम स्टेट्स आर गिवन टू द चिल्ड्रन फॉर प्रोटीन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए। मिशन इंद्रधनुष फॉर द इम्यूनाइजेशन। इफ यू सी, ऐसे तो हेल्थ के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। आई एम टेलिंग टू रिलेटेड दिस प्रोजेक्ट ओनली कि इंद्रधनुष कैसे हंगर को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स है। अगर आप हेल्थ में देखोगे तो 50 स्कीम्स है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है। तो स्टिक टू द टॉपिक ना, ऐसे तो मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है वो भी इसमें आ गई है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी इसमें आ गई है, आयुष्मान भारत भी इसमें आ गई है। लेकिन स्पेसिफिक तो चाइल्ड आपको होना पड़ेगा ना। अगर आपको क्वेश्चन पूछे स्पेसिफिक चाइल्ड, आप लिख के आ रहे हो हेल्थ स्कीम, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो आपको इससे रिलेटेड ही लिखना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली द टॉपिक इज। तो यहाँ पे माइक्रो लेवल पे आपको जाएगा कि मिशन इंद्रधनुष स्पेसिफिक फॉर द इम्यूनाइजेशन के लिए है, कि इम्यूनाइजेशन में कौन कौन सी डिजीज है वो आप मुझे बता दो अब, कि जो हेल्थ स्कीम है इम्यूनाइजेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है। इम्यूनाइजेशन में इन्होंने 7 इंद्रधनुष नाम ही इसीलिए रखा है कि रेनबो में 7 डिजीज दे आर है, उसमें से कुछ लाइक डिप्थीरिया है, पोलियो है, तो ये 6-7 डिजीज स्पेसिफिक कैप्चर करती है। तो उसके लिए मिशन इंद्रधनुष, और इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ा हो तो अबोव 90% सक्सेस रेट है। और इसका जो स्पीड बढ़ा है आफ्टर 2015, बहुत स्पीड से मिशन इंद्रधनुष की कवरेज को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्टंटिंग एज वेल एज द माल नरिशमेंट्स, इन सब चीजों के लिए, ताकि इशू नहीं, हेल्थ इशू नहीं होगा तो स्पेंडिंग कम होगा डॉक्टर्स के पास, स्पेंडिंग कम होगा तो वी हैव द मोर मनी टू स्पेंड ऑन द फूड। तो इसीलिए वो इंटरलिंक्ड है इसके, लेकिन मिशन इंद्रधनुष में ये चीजें होती है। और ईट राइट मूवमेंट में, व्हाट इज द ईट राइट मूवमेंट, इसमें क्वालिटी फूड्स के लिए गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट चलाती है वहां पे कि अभी न्यूट्रिशन मेनली की कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितना कैलोरी लेना चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये स्कीम है ईट राइट मूवमेंट्स। तो दीज आर द मेजर स्कीम्स इन्वॉल्व टू टैकल द हंगर। तो अभी ये पता लग गया रीजन्स क्या है इंडिया में, व्हाट आर द रीजन्स व्हाई द हंगर इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तभी देखते हैं। सबसे पहला है जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी का सिंपल सा एग्जांपल है, अगर विलेज में जाओगे तो दे आर प्रेफरिंग टू सेंड मेल टू स्कूल, फीमेल्स को वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो जहां पे स्कूल में मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जाता है, आफ्टर उसके बावजूद भी वो दे आर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू द स्कूल। ये कुछ एक विलेजेस में है, अभी पहले बहुत ज्यादा था। जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से मीन्स पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। एक इकोनॉमिक सर्वे में कंसेप्ट आया था मेटासन थ्योरी, मेटासन थ्योरी 2017 में। तो ये सारे इंटरलिंक होते हैं। अबेंडेंट गर्ल चाइल्ड के ऊपर में लिखा हुआ था उस पर, अबेंडेंट गर्ल चाइल्ड। तो वन ऑफ द रीजन इज द जेंडर इनइक्वालिटी। सेकंड में अगर देखेंगे तो हिडन हंगर। हिडन हंगर मीन्स होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएंगे, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, आयरन्स हैं, तो मिनरल्स, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से ऐसे तो हमें दिखेगा कि वी आर ऑन हेल्दी साइड, बट आफ्टर द माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, इसको कहते हैं हिडन हंगर। अचानक से ही डेथ हो जाती है कि 4 साल का बच्चा सही था लेकिन डेथ हो गई ड्यू टू द माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। अनआइडेंटिफाइड हंगर, अनआइडेंटिफाइड हंगर मींस यहां पे ये क्लैरिटी नहीं है हु इज अबोव पॉवर्टी लाइन एंड हु इज बिलो पॉवर्टी लाइन, बिकॉज आउट ऑफ 80 करोड़ पीपल जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं पीडीएस के, वो 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं इंडिया में। 80 करोड़ पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द पीडीएस। तो उन 80 करोड़ में सबको रिक्वायरमेंट नहीं है ना। आउट ऑफ दो 80 करोड़ में भी 40 करोड़ रिक्वायर्ड कि उनको और ज्यादा चाहिए ताकि वी दे कैन ओवरकम फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाए। तो वो टारगेटेड चीज मिसिंग है कि जिनको ज्यादा रिक्वायरमेंट उन पे ना फोकस होकर यू आर कवरिंग ऑन द मेजर पॉपुलेशन जिनको रिक्वायरमेंट भी नहीं है।
तो वो वाला कि अनआइडेंटिफाइड हंगर के अंदर ये आता है, यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो वो एक मेजर इशू है इंडिया में हंगर प्रॉब्लम का भी। देन नेक्स्ट इज द फॉल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस स्कीम। पीडीएस स्कीम में अभी बहुत सारी चीजें देखोगे, लाइक एजुकेटेड, इतना एजुकेशन नहीं है। यू लिंक्ड विद द आधार, आपने आधार के बाद उसके बाद थंब प्रिंट्स लगा दिया कि जिसको कहते हैं जैम, जनधन आधार मोबाइल। अब कुछ इशू है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से नहीं हो पाता, कई बार प्रिंटिंग हो जाती है लेकिन ड्यू टू नेटवर्क इशू नहीं होता, फिर दोबारा जाते तो वो कनेक्टेड भी नहीं होता, कि होता है कि आपने ऑलरेडी ले चुके हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। तो वो वाले रीजंस भी आते हैं। तो फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें और क्या रीजन आ जाता है, जो अच्छे वाला ग्रेन है, गुड ग्रेन्स को आउटसोर्स मार्केट में ही बेच देते हैं, एंड द लो क्वालिटी ग्रेन्स दे आर गिवन टू द पीपल, तो जिसकी वजह से और ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है, तो वो और ज्यादा माल नरिश हो जाते हैं और हेल्थ पे भी एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है, जिसकी वजह से भी हंगर इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है पॉवर्टी बैकिंग हंगर। इसका मेजर रीजन है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा है, लिमिटेड एक्सेस ऑफ फूड है, जो न्यूट्रिशनल फूड है वो पहुंच नहीं पा रहा है। द मेजर रीजन बिहाइंड इट द ओवर पॉपुलेशन विद द लिमिटेड फूड एक्सेस। फूड एक्सेस कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से हंगर इज इंक्रीजिंग इन इंडिया। तो पॉवर्टी बैकिंग है, फॉल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अनआइडेंटिफाइड हंगर है, हिडन हंगर एंड द जेंडर इनइक्वालिटी। अगर कोई भी रीजन आता है व्हाई द हंगर इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, तो ये मेजर है। इसके लिए आपको अगर अपने आंसर को एनरिच करना चाहते हो, डेटा होना चाहिए आपके पास। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि वट यू नीड टू रीड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। इट इज नॉट एनफ कि आपको बस यही पता हो कि वेल्थ हंगर लाइफ रिपोर्ट्स को रिलीज करता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर का स्टेटस क्या है, क्या क्या रीजन लिंक्ड है, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है। सो दिस बिकेम ओवरऑल आंसर। अगर आप इसको फ्रेम करोगे तो ये पूरा पीडीएफ एक ओवरऑल आंसर की तरह लगेगा आपको। ये डेटा है, कुछ डेटा यू कैन सी। चाइना मेनली हर इंडिकेटर में फर्स्ट रैंक पे है। हाउ इट इज पॉसिबल? चाइना हर इंडिकेटर में फर्स्ट रैंक पे है। इधर इट इज अंडर नरिशमेंट, इट इज वेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन, मोर्टेलिटी रेट और स्टंटिंग। चाइना इज ऑन द फर्स्ट रैंक। मेजर क्या है, जो चाइना का ऑफिशियल डाटा होता है वो रिलीज नहीं होता आउट ऑफ द कंट्री, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन की वजह से। किसी भी रिपोर्ट में देखोगे तो उनके डेटा में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज है। अभी ये भी नहीं पता कि चाइना इतना तेजी से ग्रो कर भी रहा है या नहीं रहा है, तो ये सारा डिस्क्रिपेंसीज की वजह से है, क्योंकि सिक्योरिटीज इशू की वजह से है। किसी भी आउटर ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट नहीं होने दिया जाता है। तो वो डेटा इंडिया में ये ओपननेस है कि कोई भी आए कहीं पे भी रिपोर्ट करे और चला जाए।